आफ्टर पेंटिकॉस्ट, ईद पेंटिकुस्त के बाद 20वां इतवार, आइए हम खुदावंद की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएं। Let us pray. Almighty and everlasting God, you are always more ready to hear than we to pray. Give more than we either desire or deserve. Pour down upon us the abundance of your mercy, forgiving us those things of which our conscience is afraid, and giving us those good things which we are not worthy to ask, except through the merits and mediation of Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen. बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की ये रीत मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय। Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let his praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I am standing on the promises of God.
the promises that cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I am standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see, perfect present cleansing in the blood for me, standing in the liberty where Christ makes free, standing on the promises of God. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I am standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God. Standing, standing, I'm standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I am standing on the promises of God. Today's Gospel reading has been taken from the book of St. Luke, chapter 10, verses 1 to 9. After these things, the Lord appointed 70 others also, and sent them 2 by 2 before His face into every city and place where He Himself was about to go. Then He said to them, The harvest truly is great, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Go your way. Behold, I send you as lambs amongst wolves. Carry neither money bag, knapsack, nor sandals, and greet no one along the road. But whatever house you enter, first say, Peace to this house. And if a son of peace is there, your peace will rest on it. If not, it will return to you. And remain in the same house, eating and drinking such things as they give, for the laborer is worthy of his wages. Do not go from house to house. Whatever city you enter and they receive you, eat such things as are set before you, and heal the sick there, and say to them, The kingdom of God has come near to you. This is the word of God. May the Lord bless the reading and hearing of His word. प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी
हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरे जिंदगी की हर एक परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई खाली नहीं मुझको। मेरी जरूरत को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक पति समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा
खुदावन की बुलाहट कोई करियर नहीं है, बल्कि वो हक ताला के साथ एक अहद है। खुदावन अपने खादिमों को मुकर्रर करता है, मखसूस करता है और ख़ास काम के लिए उन्हें भेजता है। खुदावन के खादिम आम तौर पर बहुत मामूली लोग होते हैं, मगर खुदा उन्हें रूहें बचाने के काम के लिए इस्तेमाल करता है। Though a true minister never seeks self-glory, but it is a blessed thing to honor the servant of God, because by doing that we share in the ministry, in their ministries and please God. आज पेंतेकोस्त के बाद 20वां इतवार है और आज का मुद्दा है लूका रसूल की जिंदगी के लिए शुक्रगुजारी। लूका जो कि पौलुस के बहुत ईमानदार हम सफर रहे और इंजील के लिखने वाले। Thanksgiving for Luke, a faithful companion of Paul and the writer of gospel. लूका रसूल पौलुस के बहुत करीबी थे और इस वजह से वो बाकी शागिर्दों के साथ भी संपर्क में थे और उन्होंने उन शागिर्दों को कलाम सुनाते हुए, तालीम देते हुए और मौजज़े करते हुए देखा था। क्योंकि वो पढ़े लिखे थे काफ़ी और वैद्य थे, डॉक्टर थे, तो उन्होंने जो इंजील लिखी वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर और वो कलाम को बहुत गहराई से डिटेल में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी और खिदमत के बारे में बताते हैं इंजील में। He also records the ministry of the early church, अर्ली चर्च की एक हिस्ट्री देते हैं कि किस तरह से कलीसिया की स्थापना हुई, कैसे कैसे कलीसिया ने जद्दोजहद करी और किस तरह से कलीसिया बढ़ती गई। अगर प्रेरितों के काम जो किताब उन्होंने लिखी है उसको हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि इंजील के अंदर कलाम में लूका रसूल कहीं पर कलाम नहीं सुनाते, कहीं पर मौजज़े नहीं करते, मगर जो उन्होंने लेखनी लिखी है, द लिटरेचर दैट इज रिटन इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द चर्च। Luke has great respect for the servants of God, and that is the reason he served Paul as his personal physician during his missionary journeys. In this passage under consideration, Luke records Jesus' words wherein he is sending his disciples on missionary work, or one may call it apprenticeship. Legends hold that Luke was one of the 70. खुदाबंद अपने लोगों को मखसूस करता है, मुकर्रर करता है, तालीम देता है और उनको भेजता है ताकि वो खुदा के कहे काम को कर सके। इन द मिशन बिलीवर्स आर सपोज्ड टू जॉइन देम, शेयर द मिशन एंड इवन द ब्लेसिंग्स दैट फॉलो। इससे पहले कलाम में आगे जाए, आइए हम दुआ करें। हमारे रूहों और दिलों को खोल दे आए मुबारक खुदाबंद, ताकि आपका कलाम हमसे रूबरू हो, खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ बाइबल का हिस्सा निकाल कर रखें, लूका की इंजील उसका 10वां बाब। पहली चीज़ जो हम देखते हैं 1 से 3 आयत के अंदर और चौथी आयत के दूसरे हिस्से में, फर्स्ट थिंग दैट वी फाइंड हियर इज गॉड अपॉइंट्स एंड सेंड्स हिज मिनिस्टर। खुदावंद अपने लोगों को मुकर्रर करता है और भेजता है। एक बार किसी परिवार में मैं था, वहाँ पर 3 लड़के थे। मैं पूछ रहा था परिवार से कि बच्चे क्या करेंगे, तो परिवार के मुखिया ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा जवाब दिया कि पादरी साहब, एक तो पहला वाला बहुत पढ़ाई लिखाई में तेज़ है, तो हम सोच रहे हैं कि उसको IAS की कोचिंग कराई जाए। जो दूसरा है वो थोड़ा कम है, उसको BEd कराया जाए। मगर ये तीसरा है, ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, कुछ कर नहीं पा रहा, हम सोच रहे हैं इसको पादरी बना दें। अजीजों, हम जिस तरह की क्वालिटी भेजेंगे, जैसे हम सोच रखेंगे, वैसा ही हम रिजल्ट की भी उम्मीद रखें। गॉड डिजर्व्स द बेस्ट। अगर आप बाइबल पढ़े तो मूसा की ट्रेनिंग खुदा ने फिरौन के महल में करी और वो अगला फिरौन बनने वाला था। नहमिया कप बेरर था पर्शिया के राजा का। अगर आप अपना बेस्ट देते हैं खुदा को, तो खुदा भी अपना बेस्ट आपको देता है। If you give your best to the Lord, He will return His best to us.
Colossians chapter 4 verse 14 tells us that Luke was a doctor. He probably practiced medicine in Malta. Acts chapter 28 verse 9. मगर जब खुदा ने उसको बुलाया तो वो अपना करियर छोड़कर कलाम की मनादी के लिए आ गया और पौलुस रसूल को उसने सपोर्ट करा। पहली आयत हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह 72 को भेज रहा है। ये जो 70 और 72, यहाँ पर थोड़ा सा जो बाइबल स्कॉलर्स हैं, बाइबल ट्रांसलेटर्स हैं, इनके बीच में थोड़ा सा मतभेद है। पर ज़्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद 70 था, क्योंकि जो उत्पत्ति 10 में जहाँ मुल्कों की गिनती है पूरे दुनिया में करीबन 70 मुल्क थे, तो यानी कि जो 70 लोग खुदावंद यीशु मसीह भेज रहा है वो इस बात को दिखा रहे हैं कि खुदा का कलाम पूरी दुनिया के लिए है। और क्योंकि मिशन बड़ा है, इसलिए खुदावंद कह रहा है कि तुम और भी मजदूरों के लिए दुआ करो कि खुदा और मजदूर दे। Though Jesus is opening a new front by sending his disciples to the unreached, but this mission is rooted in the Old Testament law. Sending them 2 by 2 fulfills the OT requirement of 2 witnesses, Deuteronomy chapter 17 verse 6 and 19 verse 15. व्यवस्था विवरण में लिखा है कि 2 लोगों की गवाही काफी थी सच को बयां करने के लिए। इस बात का मतलब है कि जब हम कलाम के लिए आगे सुनाने के लिए जाते हैं, खुदा की खिदमत के लिए आगे जाते हैं, हमें कलाम में अपनी जड़ें बनाकर रखना है। और जैसे यहोशू 1 उसका 7वीं आयत के अंदर लिखा है, तू कलाम से ना तो दाएं और ना बाएं मुड़ियो। The verse 2, harvest is plentiful but the laborers are few. दुआ इसलिए करनी है क्योंकि there is a world waiting to be born. आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के काम के लिए आगे आए। एक बार खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 9:38 के अंदर, मैथ्यू 9:38, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोता है क्योंकि वो उस भेड़ की मानद है जिसके पास कोई चरवाहा नहीं है। खुदा के लोगों के पास ये पर्सनल टच होना बहुत जरूरी है सेवकाई में। और साथ ही साथ एक और बात जो हमें देखने को मिल रही है, खुदा कह रहा है और लोगों के लिए प्रार्थना करो कि और भी लोग आए। इसका मतलब है कि वी हैव टू राइज अबव द मेंटालिटी ऑफ डिनोमिनेशनल क्रिश्चियनिटी and respect other ministers while praying for more. For only God sends his minister. Verse 3 makes the call of a minister absolutely clear. It says, I am sending you. A servant of God is ordained and appointed by God. It is God who chooses, and it is God who ought to choose. खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील 15:16 के अंदर कहता है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है और तुमको मुकर्रर करा है ताकि तुम जाओ और फल लेकर आओ, ऐसे फल जो अबद तक रहें। God ordains and sends his people to bear fruits. Ministers must fear God and make every effort to work hard and yield fruits. Lazy people do not have any role in the ministry of God. Again in verse 3 we find Jesus is very genuine when he calls his people. खुदावंद यीशु मसीह साफ तौर से कह रहा है, warn the disciples the dangers of ministry. I am sending you like lambs among the wolves. भेड़ियों के बीच में मेमनों के मानिंद भेज रहा हूं। Now this is very interesting. Wolves have the following peculiar qualities. Wolves have the courage to stand. They are ferocious creatures. और ये आपको जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, आपको मार भी सकते हैं भेड़िए। Wolves have strongly determined nature. आसान नहीं है उनके दिशा को बदलना। Wolf is an incredible leader. आप उनके चेलों को उनसे छुड़ा नहीं सकते।
उनके जो पीछे चल रहे हैं उनको वो बहुत मजबूती और समझदारी से उनकी हिफाजत करते हैं। Wolves are equivalent to freedom. ये जंगली जानवर हैं, इनको लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है। Wolves won't show you mercy. यूहन्ना के अलावा बाकी सारे जो शागिर्द थे बहुत बुरी तरह से मार दिए गए थे। The wolves enjoy in the dark of night. उनके काम गंदे हैं, अंधकार में वो काम करते हैं और हमला तब करते हैं जब आपको उम्मीद भी नहीं होती। Darkness represents the kingdom of Satan. And seventh thing, wolves are among the world's most smartest and most perspective mammal. आसान नहीं है इनके बीच में काम करना। While dealing with such people, खुदा के लोगों को मेमनों के मानंद रहना है। यशायाह नबी की किताब आइज़ाया chapter 42 verse 2, it says he will not shout or cry or raise his voice in the streets. The statement is reiterated in Matthew chapter 12 verse 19. Even if the world loses its standards, ministers of God never lose their flavor. While ministering, his people represent the lamb that was slain. खुदावन की खिदमत आसान नहीं है अजीजों। It calls for challenges and Christ has already warned us. God chooses his people. He wants them to trust God through the challenges of ministry and work hard in his vineyard. However, when he chooses us, he creates support, provides our needs and stands with us. और इसी के साथ दूसरे नुक्ते पर पहुंचते हैं। God makes provisions for his ministers. खुदावन अपने खादिमों की जरूरतों का ख्याल रखता है। लूका की इंजील chapter 10 verses 4a and 7 and 8. In 4a, Jesus told them to carry no money bag, no knapsack. 2 जोड़े जूती भी मत लेना और किसी को सलाम मत करना रास्ते में। जब हमें खुदा सेवकाई के लिए बुलाता है, कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या खाएंगे, अपनी जिंदगी को कैसे चलाएंगे। कलाम कहता है जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे मुड़ के देखता है वो आसमानी बादशाहत के लायक नहीं है। After all, ministry of God is selfless service, though benefits are out of this world. जिस इंसान की नजरें ही अपनी कमी घटी पर लगी हुई है, वो हर वक्त कुड़कुड़ाता रहेगा और उसके पास शिकायतों के अलावा और कुछ नहीं होगा। खुदावंद यीशु मसीह उनको he was sending them to preach the message of faith and dependency on Christ. The message could best be revealed through their lives. इन सब चीजों के बारे में चिंता करना would be cumbersome, taking away precious time that should have been spent in ministry. Moreover, दूसरे लोग भी ऐसे सोच से ऐसे सेवकों को देखकर डिस्करेज हो सकते हैं जो कि खुदा की रहमत पर भरोसा ना करें। They were to become a living picture of dependency on God that God wants from every believer. Moreover, worldly positions usually pull a person away from God and makes it difficult for him to serve the Most High. However, जब आप खुदावन की बुलाहट को ले लेते हैं तो आप खुदावन की जिम्मेदारी बन जाते हैं। आपको याद होगा किस तरह से खुदावन मन्ना जंगल में खिला रहा था और एलिया को कौवों के जरिए कैसे खुदावन ने मीट की बोटियां खिलाई थी। In verses 7 and 8, Christ involves believers in the ministry of his servants. किस तरह से कलीसिया खुदा के खादिमों के साथ जुड़कर उनकी सेवकाई का हिस्सा बन सकती है। Every believer is a servant of God. मगर जो खास काम के लिए मखसूस कर दिया गया है, कलाम में लिखा हुआ है कि लेवी और याजकों की एक खास सेवकाई थी जिसके लिए वो मखसूस कर दिए गए थे और बाकी इज़राइल के लोग उनकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए थे।
वो अपनी दहकी देकर, दशवांश टाइथ देकर उनकी जरूरतों का ख्याल करते थे. The same way ministers of God should be taken care by believers. Everyone cannot become a preacher or a teacher. You may share in the ministry in the ministry by supporting a minister. खुदावंद के योजना की खूबसूरती ये है कि आप उसके प्लान का हिस्सा बन सकते हैं, चाहे आप छोटा से भी काम क्यों ना करें. मरकुस 9:41 में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर कोई एक ठंडे पानी का कटोरा भी तुमको पिलाता है तो वो भी लिख लिया गया है और उसको, उस शख्स को उस बात का इनाम मिलेगा. Everyone has or his or her own limitations. Get involved where you can. Believe me, it's a blessed thing to be involved in the ministry of the Most High. At the same time, servants of God must be happy and thankful with whatever they are provided. God knows our needs best and provides the best for us. Ministers of God are the messengers of peace. An unsatisfied appetite will only breed discontent and unrest. Satisfaction is something that comes from within and not from without. संतुष्टि अंदर से आती है, बाहर से नहीं. Jesus told them कि अपने साथ कुछ भी मत लेकर जाना, मगर एक चीज लेकर जानी है. वो क्या है? खुदावंद की तसल्ली, खुदावंद का इत्मीनान. Because God would provide their needs and they are to extend His love and peace to the believers. चौथी आयत के अंदर खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि किसी को रास्ते पर सलाम भी ना करना. Greetings in the ancient Near East was not like what we do today. दूसरे राजा 4:29 के अंदर जब एलिया एलीशा को भेजता है कि एक लड़के को जाकर जिंदा करना है, तो कहता है तो रास्ते में किसी को सलाम ना करना. बिकॉज दीज ग्रीटिंग्स वर, ये लंबे ग्रीटिंग्स होते थे, इनमें समय लग जाता, कई कई दिन लग जाते थे. The idea is to show the urgency of the mission of God. Ministers of God must not waste time in the affairs of the world. The mission is focused, their mission is focused upon another world which is eternal and everlasting and into which they will eventually enter. Urgency in the mission of God is evident from John 9:4. जब खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि दिन ही दिन में काम कर लो क्योंकि वो रात आने वाली है कि कोई काम नहीं करेगा. शैतान बहुत बड़ी ही चालाकी से काम करता है कि हमें दुनियावी बातों में फंसा देता है और हम खुदा के काम से दूर हट जाते हैं. There is an urgency to preach His message of peace rather than getting involved in the useless talks and engagements of this world and waste time. With this, we reach the final point of the sermon. God's ministers are the messengers of peace. आखिरी नुक्ता, खुदावंद के खादिम एक शांति के पैगंबर हैं. लुका 10 verses 5-6 and 9. शांति के राजकुमार के पीछे चलने वाले लोग, they should be the harbingers of peace of God. This is the beauty of Christ. कि खुदावंद यीशु मसीह हमको कोई डेलीगेटेड टास्क नहीं देता, वो वही मिशन देता है जिस मिशन के लिए खुदावंद यीशु मसीह खुद आया था इस दुनिया में. Not only that, वो हमको रूह भी वही देता है जो रूह खुदावंद यीशु मसीह के अंदर और उसके जरिए काम कर रहा था. At Christ's birth, the angel sang an anthem of praise, singing, "Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor rests." Luke 2:14. Peace on earth, दुनिया में शांति, इत्मीनान. God was at last in the world, reconciling it to Himself. The hearts of His creatures were coming back to Him. Their allegiance was to be restored. Their wills were to be subjugated.
their minds to be enlightened. Thus, peace over all the world would be established. खुदावन का कहर हट जाएगा और इंसान और शैतान के बीच जो जद्दोजहद है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब when men are really at peace with God, they will come to peace with each other. The Lord Jesus Christ commissioned the disciples to pronounce that peace upon the people so that their hearts become conducive to the gospel of Christ. When we find someone not open to the gospel or to the plan of God, we become defensive and start despising. कलीसिया के लिए बुलाहट है कि वो अमन शांति के लिए दुआ करे लोगों के लिए और मेहनत करे ताकि लोगों के बीच में कलीसिया में शांति हो, लोग एक दूसरे के साथ इत्मीनान से रहें। मत्ती 10:5 के अंदर हम देखते हैं जब खुदा यीशु मसीह 12 शागिर्दों को भेजता है कि जाकर कलाम का प्रचार करो और मनादी करो आसमानी बादशाहत की। And in verse 12 and 13, Jesus commanded them to pronounce the peace upon the house they enter. अगर वो घराना शांति के लायक है तो तसल्ली खुदा की तरफ से उनके ऊपर ठहरेगी, नहीं तो खुदा के खादिम के पास वापस चली जाएगी। जो 12 शागिर्दों को खुदावन ने मत्ती की इंजील 10वें बाब में मैंडेट दिया था, वही कमांड 70 लोगों को मिली है। The 12 were sent officially to the house of Israel, while the 70 represents the gospel being preached to the world. The message, blessings and judgment to the world are the same as that on Israel. खुदावन भेदभाव नहीं करता, सबको बराबरी से देखता है। जब खुदा के लोग कलाम सुनाने जाएं, उसकी खिदमत करने जाएं, तो उनको भी बराबरी से काम करना है, पक्षपात नहीं करना। In verse 6, the Lord Jesus Christ commanded the disciples to pronounce peace, but it would rest only on the one who would promote peace. खुदावन के खादिम के लिए यह हुक्म है कि वो हर किसी को बरकत ही दे, चाहे सामने वाला बरकत के लायक है या नहीं है, यह खुदा तय करेगा किसको बरकत मिलेगी। हमारा काम सिर्फ बरकत देना है। खुदा के खादिमों के दिल से, उनकी ज़बान से गलत बातें नहीं निकलनी चाहिए, कहर नहीं निकलने चाहिए। Verse 9 commands the disciples to heal the sick and to tell them that the kingdom of God has come near them. खुदावन की तरफ से चंगाई और मुआवजे कोई शो ऑफ करने के लिए चीज नहीं है। Miracles reveal the glory of God. A believer must not help just for the sake of helping, but must help for the glory of God to be revealed. हम जब किसी की मदद करें, कोई मुआवजे करें, कोई दुआ करें, कोई खिदमत करें, तो उसका एक मकसद होना चाहिए कि खुदावन के नाम को जलाल मिले, वरना वो बेकार है। The Lord Jesus Christ equips His church to help the needy and to find the lost, so that God's name is glorified. People are reconciled to God and enter into His kingdom, the place for which they are originally designed. The messengers of God play a vital role in ministry. खुदावन ने हमको बुलाया है कि हम जो पेरिश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करें, pronounce peace on the non-deserving and preach to the unreached so that the kingdom of God expands. We are called to sow the seeds of His gospel in the hearts of people and demonstrate His grace through our lives. Other believers may join this ministry by their support to the missionaries.
those who are called in His grace are protected by Him amidst the severest of persecution. हमें चिंता नहीं करनी कि हमारी ज़रूरतों का क्या होगा. अगर हम अपने काम के लिए ईमानदार हैं तो खुदाबंद भी अपने वायदे पर वफादार है. We have to set our eyes on the Lord Jesus Christ and let Him work in and through our lives. आइए हम दुआ करें. खुदाबंद आपका कलाम हमें ज़िंदगी देता है और पाक कलाम के ज़रिए हमने देखा कि जब आप अपने लोगों को बुलाते हैं उनके लिए इंतज़ाम भी करते हैं. और कलीसिया के लिए भी एक ख़ास मौका है कि खुदा के खादिम के साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करें. आए बाप इनायत करें अपना पाक रूह, ताकि आपकी कलीसिया के अंदर ऐसा रूह हो कि हम मिलकर खुदावन की खिदमत करें, खुशी खुशी करें और आए बाप आपका इत्मीनान दुनिया तक पहुंचा सकें. खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए. ऐ हमारे बाप जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए. ऐ हमारे बाप रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे. जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है. ऐ हमारे बाप जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ कर दे, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे. ऐ हमारे बाप हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला. ऐ हमारे बाप क्योंकि आसमानी बादशाह और कुव्वत कुदरत सर्रो ज़मीं का जलाल है, हमेशा तेरा रहेगा, हमेशा तेरा. आमीन. आइए हम दुआ करें. आए कादिर मुतलक खुदा, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, ये इनायत करें कि आपका पाक रूह आपकी कलीसिया में इस कदर काम करे कि हम अपनी ज़िंदगी को टटोलें और हम अपने अल्फाजों पर ध्यान दें कि खुदाबंद हमारे शब्द दूसरों को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी बादशाहत को बढ़ाने वाले हो सकें. ये इनायत करें अपने बेटे हमारे दरमियानी और फिदिया देने वाले खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से. आमीन. The peace of God which passes all understanding, keep your hearts and minds in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Amen.